हेलो एस्पिरेंट्स आई वेलकम यू ऑल ऑन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजय विश्व ज्ञान मंत्रा। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਓਪਨ ਐਮਸੀਕਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਵਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਵਲ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਨਾਇਬ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਜੀ ਨਾਇਬ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੁਆਂਟ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਆਂਟ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੈਟ ਅਸ ਚੈੱਕ। ਹਾਂਜੀ, देखते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਆਰ ਸੋਨ ਏ ਸਿੰਪਲ ਐਨਾਲੌਗ ਕਲੌਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਘੜੀ ਹੈ ਵਿਦ ਐਨ ਆਰ ਹੈਂਡ ਐਂਡ ਮਿੰਟ ਹੈਂਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਦੀ ਕਲੌਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 12:15, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਟਾਈਮ ਘੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 12:15 ਹੈ ਤਾਂ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਂਗਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਲੌਕ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਲੌਕ ਦੇ ਅੰਦਰ 12:15 ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਸੂਈ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਡਿਗਰੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਡਿਗਰੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਫ ਡਿਗਰੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 1/2 × 15 7.5 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਡੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ 12 ਤੋਂ 15 ਮਤਲਬ ਕਿ 15 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਕਿੰਨਾ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, 6 ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 90, ਤੇ ਆ ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸੀ 7.5 ਤੇ 90 ਤੋਂ 7.5 ਘਟਾਓ, ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 82.5। ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਆਏਗਾ 82.5 ਡਿਗਰੀ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहना आयशा इन्वेस्ट ₹X फॉर ए फिक्स डिपोजिट। कहना आयशा ने फिक्स डिपोजिट के अंदर ₹X जी है इन्वेस्ट किए ने। ठीक है जी, देन गिव सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। कहते उन्हें ₹X इन्वेस्ट किए ने। आप हमेशा मन के चलते हैं 100 मन के चलते हैं ना, तो आप मने कि उन्हें 100 इन्वेस्ट 100 लेके चले, 100X लिख लो भावें, एक्स ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ 100 ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 6% ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 6% ਤੇ 100 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 106 ਬਣ ਜਾਣਗੇ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣ ਗਈ ਜੀ 106 ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ, ਸੀ ਇਨਵੈਸਟ ਹਾਫ ਅਮਾਉਂਟ ਐਂਡ ਸੀ ਗੈਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਫਾਈਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਧੀ ਅਮਾਉਂਟ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 53 ਹੋਏਗਾ। एंड फॉर अनदर ईयर इन एफ डी, कहता अद्धी अमाउंट अनदर ईयरली जो डिपोजिट कर देंगे, जिससे 5% इंटरेस्ट मिलता है। किन्ने परसेंट ब्याज मिल रहा है जी 5% ब्याज मिल रहा है। तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी जी 105% हो जाएगी। 5% ब्याज है तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी जी 105% हो जाएगी। ठीक है जी, एंड स्पेंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग, कहते जो बचा 53 तो इतने ले ले, अद्धा तो इन्वेस्ट करता, जो अद्धा बच गया वो अंदरों अद्धे यूज कर ले एंड द रेस्ट अमाउंट भी इन हर सेविंग होती है। बाकी बची अमाउंट ਨੂੰ सेविंग अकाउंट ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਅਮਾउंट बची जी 53/2 आई बची। देखो 106 ਦੀ ਹਾਫ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਫ ਬਚੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਧੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਤੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਪਾਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਰੇਟ ਤੇ ਜੀ 3% ਰੇਟ ਤੇ, 3% ਰੇਟ ਤੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 99,534 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ 53/100 ਕਾਮਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ 53/100 ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 53/100 ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ 105 + 3/2, 105 ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ 3% ਵਿਆਜ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਤਾਂ 103 ਬਣਨਾ ਸੀ। ਹਾਂ 3% ਵਿਆਜ ਨਾਲ 103 ਅਮਾਉਂਟ ਬਣੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3% ਵਿਆਜ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨੀ ਬਣੇਗੀ ਜੀ 103%। किस दे बराबर है जी 99,534 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆ 53 ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਆ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ 53 ਬਣ ਜਾ 53 ਬਣ ਜਾ 53। ਪਿੱਛੇ ਬਚਣਗੇ ਜੀ 46 ਤੇ 465, 465 53 8 53 8 424, 465 ਤੋਂ 424 ਘਟਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚੇਗਾ 41, ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ 413। ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਜੀ 53 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 371, 371 ਘਟਾਇਆ 2 ਤੇ 4, ਫਿਰ 424 ਬਣ ਗਿਆ 8 ਤੇ 1878 ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 105 ਨੂੰ 210 ਤੇ 103, 210 ਤੇ 103 ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ 210 ਤੇ 103 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਨਗੇ 313/2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ 1878 ਦੇ, 1878 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ 313 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1878 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 100। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ 313 ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ 6 ਤੇ 6 ਤੇ
ਤੇ ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1200। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1200 ਆ ਗਈ, ਕੱਢਣੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਜੀ? ਆਪਾਂ 100 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, 100 ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 1200 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ, 1,20,000 ਕਰੈਕਟ ਆंसर ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਰੈਕਟ ਆंसर ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰबर बी। ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਲੈਂਥੀ ਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 6% ਤੇ ਕੱਢਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 106 ਆ ਗਿਆ। 106 ਦੇ ਅੱਧੇ ਕਰਤੇ 53 ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਆਜ ਲਗਾਇਆ 5% ਨਾਲ ਤਾਂ 105 ਕੱਢ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ 53 ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸੇ ਤੇ 103 ਦਾ ਵਿਆਜ ਲਗਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 99 534 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ 100 ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, 100 ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆंसर ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰबर बी। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की है, कहता वाटर फ्लोइंग फ्रॉम ए टेप एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ आर लीटर पर मिनट। कहता किसी टेप के अंदर आर लीटर पर मिनट के अंदर वाटर निकल रहा है। कैन फिल ए सिलेंडरिक टैंक इन 6 मिनट। कहता वो जो टैंक नू 6 मिनट के अंदर भरता है। तो फिलिंग कैपेसिटी की आ गई जी? आप हमेशा करते हैं, मैं हमेशा एफिशिएंसी राई करानी, कितनी आ गई? फिलिंग कैपेसिटी आ गई जी 1/6। ठीक है जी, फिलिंग कैपेसिटी आ गई। कहता ए होल इज मेड एट द बॉटम ऑफ टैंक। कहते बॉटम जो टैंक है वो थले एक होल है, सो दैट वाटर फ्लो आउट ऑफ। कहते ताकि पानी टैंक तो बाहर निकल जाए। कांस्टेंट रेट एट 1/3 ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। किन्ने किस दे बराबर है जी? जिन्ना वाटर दा फ्लो दा टैंक इस दा फ्लो सी आर लीटर सी, कहता इस दा 1/3 है, इस दा 1/3 है, तो जिन्ना टाइम आ फिल करने से लगेगा उतना टाइम ही उस दा 1/3 ही एम्प्टी करने से लगेगा ना। देखो जी फ्लो 1/3 है, मैं कहता किसी चीज का फ्लो पहला वाले का 1/3 है, तो उस चीज को फिल करन या एम्प्टी करन च उसके 1/3 की एफिशिएंसी ही रखेगा। तो एम्प्टी दे अपने को कितना आ गया जी? एम्प्टी इसका 1/3 करांगे तो 1/18 आ गया। तो इन्होंने सोल्व कर लेने, कितना टाइम बनेगा? दोवां ने इकट्ठा चलाना है, 1/6 माइनस 1/8, क्योंकि आ पानी पा रहा कढ़ रहा है, तो कितना टाइम लगेगा जी? आ गया अपॉन 18 ते 6 3 ते -1, 2/18 1/9 आ गया। तो कितना टाइम लगेगा जी? 9 मिनट्स लगणगे। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 मिनट लगणगे। टैंक नू पूरा भरन दे लई कितना टाइम लगेगा जी? 9 मिनट्स लगणगे, पूरे दे पूरे 9 मिनट। हाँ जी आ क्वेश्चन भी इजी सी। नेक्स्ट है कहता सी इज ए सर्कल विद रेडियस आर इज ग्रेटर देन 0। सी कोई सर्कल है जिसका रेडियस आर ग्रेटर देन 0 है। आ क्वेश्चन बड़ा ही इजी सी, बढ़िया वाला क्वेश्चन सी। कहता दी सर्कमफ्रेंस ऑफ सी कैन नेवर बी इक्वल टू इट्स एरिया। कहता उस दा पैरामीटर परिमाप घेरे दे बराबर नहीं हो सकता। जी क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, देखो परिमाप दा फार्मूला हुंदा 2πr, जे मैं घेरे दा हुंदा πr²। जे आर दी वैल्यू 2 हो जे, जे आर दी वैल्यू 2 हो जे तो की बनेगा जी? 4πr बनेगा, 4πr बनेगा, बराबर हो गए ना, बराबर हो गए। तो पहली तो बिल्कुल गलत है जी। दूजा कहता एरिया ऑफ सी इज डेफिनेटली ग्रेटर देन सर्कल। कहता हमेशा उस तो वड्डा होएगा, पर आपां ते इत्थे बराबर भी प्रूव किया है। ਇਹਦਾ मतलब आ गल भी गलत है, ने डेफिनेटली वर्ड यूज कर लिया। इत्थे तो आपां नहीं कह सकते कि हमेशा वड्डा होएगा, हो सकता बराबर होवे या फिर घट भी हो सकता है। देन कहता दी एरिया ऑफ सी इज डेफिनेटली ग्रेटर देन इट्स सर्कल एक्सेप्ट आर इज लेस देन 1। कहता हमेशा वड्डा होएगा सर्कमफ्रेंस जे आर 1 तो छोटा है। आर 1 तो छोटा है तो हमेशा वड्डा होएगा जी, नहीं कह सक, जरूरी नहीं है। जे आर 1 तो छोटा हो गया तो एरिया कदे नहीं वड्डा होएगा। देखो मैं दे सकती हूँ, मान लो आर हाफ है, आर हाफ है तो पैरामीटर कितना आ गया? पाई आ गया। तो इत्थे जे आर हाफ है तो पैरामीटर एरिया कितना है जी? π/4 आ रहा है। तो ਇਹਦਾ मतलब कौन छोटा है? एरिया छोटा ना। तो आ गल भी गलत है, सॉरी एक्सेप्ट लिखा है, सॉरी एक्सेप्ट लिखा हुआ है कि आर जे 1 तो वड्डा हो गया। आ की कह रहे हैं? एक्सेप्ट आर इज लेस देन 1। कहते आर 1 तो छोटा है तो एरिया कट रहेगा, पर कहता आर जे 1 तो वड्डा हो गया तो सर्कमफ्रेंस हमेशा छोटा होएगा जी। नहीं, आ गल फिर आप गलत कर रहे हैं इसे एग्जांपल नाल, क्योंकि 2 1 तो वड्डा है पर एरिया की आ रहा है बराबर आ रहा है। तो आ भी ऑप्शन गलत होगी। एक ऑप्शन बचे डी बिल्कुल करेक्ट होगी कि जेड़ा एरिया है हमेशा सर्कमफ्रेंस तो वड्डा होएगा एक्सेप्ट आर इज लेस देन और इक्वल टू 2। जे आर 2 तो छोटा है या फिर 2 के बराबर उदों तक एरिया वड्डा नहीं होगा, पर जो आर की वैल्यू 2 तो वध गई ना, कोई भी नंबर लेके देख लो तुसी, हमेशा एरिया वध आएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते एक कंपनी यूज रोजवुड फॉर मेकिंग चेयर। कहते एक कंपनी है रोजवुड यूज करती है कुर्सियां बनाने लई। मेकिंग चेयर इन्वॉल्व कटिंग, कहते चेयर बनाने लई कटिंग करनी पैंदी है, फिनिशिंग करनी पैंदी है, पॉलिशिंग करनी पैंदी है। ठीक है जी, मनदे हैं करनी पैंदी है। कटिंग ली 10% वेस्टेज, कहता कटिंग नाल 10% वेस्टेज हो जाती है वुड की। ठीक है जी। फिनिशिंग लीड 5% वेस्टेज, फिनिशिंग नाल कितने परसेंट हो जाती है? 5% वेस्टेज हो जाती है। एंड सबसिक्वेंट 1% इंक्रीज इन द वेट ड्यू टू नेल्स, कहता नेल्स के कारण 1% वेट बढ़ जाता है। तो पॉलिशिंग लीड टू ए 2% इंक्रीजमेंट, तो पॉलिशिंग नाल जेड़ा जी वेट है 2% बढ़ जाता है। ठीक है जी। तो की कह रहा है
इफ टोटल वेट ऑफ पॉलिश चेयर इज 520 कहता जब पॉलिश करके जो ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ weight ਆ ਰਿਹਾ 528.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤਾਂ what is the total weight of rosewood ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ rosewood ਕਿੰਨੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 100% ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ 100% ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦਾ 10% ਵੇਸਟੇਜ ਹੋ 10% ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਬਚ ਗਈ wood 90% ਬਚ ਗਈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 10% ਹੋ ਗਈ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 5% ਹੋਰ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ 90 ਦਾ 5% ਵੇਸਟ ਹੋਈ ਤਾਂ 90 ਦਾ 5% ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਜੀ 9 5 45 ਤੇ 4.5 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 90 ਤੋਂ 4.5 ਘਟਾ ਦੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਬਚੀ ਹੈ ਜੀ 85.5 ਹੁਣ ਵੁੱਡ ਕਿੰਨੀ ਬਚ ਗਈ ਜੀ 85.5 ਬਚ ਗਈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ 1% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ 1% ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ 85.5 ਦਾ 1% ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਜੀ 85.5 ਦਾ 1% ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0.85 ਆਏਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 5 ਤੇ 8 5 13 ਤੇ 86.35 ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ weight ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 86.35 ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੋਲਿਸ਼ਿੰਗ ਲਈ 2% ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ 2% ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ 2% ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆ ਹੋ ਗਿਆ 70 ਤੇ 12 ਤੇ 172 ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 1.72 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਥਿੰਗ 1.72 ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਦੇ ਟੋਟਲ weight ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 86.35 plus 1.72 70 ਤੇ 88.07 88.07 ਬਣ ਜੂਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸ ਦਿੱਤੀ 88.07 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ 528.5 528.5 ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ 52 85 ਬਟਾ 88 ਆਪਾਂ 88 ਲੈ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 07 ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ 88 ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 81 ਜਾ 87 ਜਾ 56 ਨਹੀਂ ਜੀ 86 ਜਾ 48 ਤੇ 48 4 528 ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਲਗਭਗ 6 ਤੇ ਜਾਊਗਾ 528 ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਝ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ 6 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 ਹੈ ਤਾਂ 100 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 600 kg ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 600 kg ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 88.07 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 582.5 ਦਿੱਤੀ ਹੈ 88.07 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 582.5 ਹੈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 600 kg ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਜੀ 600 kg ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਹਾਂਜੀ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਧੀਆ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਫ ਅ ਬੋਰਡਿੰਗ ਹਾਊਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਹਾਊਸ ਦਾ are partly fixed ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਫਿਕਸ ਹੈ ਤੇ partly vary with the number of borders ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡਰਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ the charge is 70 per head when there are 25 borders ਕਹਿੰਦਾ 70 ਰੁਪਏ ਪਰ ਹੈਡ ਚਾਰਜ ਜਦੋਂ 25 ਬੋਰਡਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 35 ਤੇ 14 ਤੇ 3 17 1750 ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ 60 ਪਰ ਹੈਡ ਦੇ when there are 50 ਬੋਰਡਰ ਕਹਿੰਦਾ 60 ਪਰ ਹੈਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 50 ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਬਣ ਗਿਆ 3000 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਕਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬੋਰਡਰ ਵਧੇ ਨੇ 25 ਵਧੇ ਨੇ 25 ਵਧੇ ਨੇ 25 ਬੋਰਡਰ ਵਧੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਜੀ 3000 ਤੋਂ 1750 ਘਟਾਈਏ ਤਾਂ 50 ਤੇ 1800 ਤੇ 1250 ਆ ਗਿਆ ਜੀ 25 ਦੇ ਵੈਲਿਊ 1250 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 50 ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 50 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਸ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 50 ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਚਾਰਜ ਪਰ ਹੈਡ ਵੈਨ देयर आर 100 ਬੋਰਡਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬੋਰਡਰਸ 100 ਨੇ 100 ਬੋਰਡਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰ ਹੈਡ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਆ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 50 ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 50 ਹੈ ਤਾਂ 100 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ 5000 ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 50 ਤੇ 100 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5000 ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਦੇਖੋ 3000 ਸੌਰੀ 25 ਦੀ 50 ਸੀ ਇੱਕ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਆ ਗਈ 50 ਕੋਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਹੈ 100 ਬੋਰਡਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਹੈਡ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਡ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਆ 1750 ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 1750 ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 70 या ले लेना दूसरी ऑप्शन इजी है देखो अपने को 3000 टोटल कॉस्ट लगी है इतनी ठीक है फिक्स्ड दी कॉस्ट 50 है एक दी फिक्स्ड दी कॉस्ट 50 है तब 50 दी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ जाएगी 50 दी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ जाएगी जी 2500 3000 तो 2500 घटाओ तो कितने आ गए जी 500 आ गए कितने आ गए जी 500 आ गए ਇਹਦਾ मतलब अपनी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ गई 500 रुपीस आ गई फिक्स्ड कॉस्ट 500 है ਤੇ ਵੈਰੀ ਵਾਲੀ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ 50 ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ 50 * 100 5000
प्लस 500 कितना आ गया जी 5500 आ गया। 5500 आ गया 100 इंटू डैश इज इक्वल टू 5500 है तो 100 नाल डिवाइड करा कितना आ जाएगा जी 55 आ जाएगा। दोबारा दस दिन है जी स्टार्टिंग तो देखो पहला की कह रहे 70 पर हेड है जे 25 बॉर्डर्स ने तो टोटल पैसे बने अपने को 1750। फिर कहना 60 पर हेड है जे 50 बॉर्डर्स ने तो टोटल केस किन्ने टोटल पैसे किन्ने बने 3000। तो आपां की चेक किया कि 25 चीज़ों की वैल्यू 25 वेयरिंग की आ चीज़ वेरी कर रही है जी वेयरिंग आउट वेरी कर रही है कहते अमाउंट्स है बॉर्डर्स वेरी कर रही ने वेरी दी आप अमाउंट कटते हैं 25 की वैल्यू किन्नी आई सी अपने को 1250। तो एक चीज़ की वैल्यू जी वेरी कर रही है वो किन्नी है जी 50 के बराबर है। एक चीज़ की वैल्यू 50 के बराबर है तो इतों आप आ इक्वेशन लेके सोल्व करते हैं अपने को 50 बॉर्डर्स नहीं तो एक की वैल्यू 50 है तो टोटल किन्ने बन गए जी 2500 बन गए। 2500 तो एक बॉर्डर की कॉस्ट अपने को 50 रुपए आ गई तो 2500 ये अंदरों घटा दो पिछे किन्ने बचे 500। एदा मतलब 500 तो उन्होंने फिक्स्ड चार्ज है उन्होंने 500 तो पहला फिक्स्ड लेनी है बाद दे अंदर जिन्नी बॉर्डर्स ने उन्होंने 50 रुपए के हिसाब से कॉस्ट लेनी है तो यदा मतलब फिक्स्ड प्राइस कितना आ गया जी 500 आ गया। इन्हें पूछिए 100 बॉर्डर दी तो 500 तो फिक्स्ड प्राइस आ गया तो वेरिंग प्राइस कितना है जी 50 5000 कितना बन गया जी टोटल पैसे बन गए 5500। इन्हें क्या 100 बॉर्डर से तो हैड किन्ने ने आ पूछे इन्होंने दोनों की मल्टीप्लाई अपने को 5500 है तो आ कितना आ गया जी 5500 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਭਾਗ कर दो 55 आ गए 55 हैड होंगे किन्ने हैड होंगे जी 55 हैड ठीक है जी 55 हैड आ गए। इसमें एक तरीके नाल होर भी कर सकते हैं देखो जे तुसी कन्वेंशनल मैथड नहीं यूज करना जे ਤੁਹਾਡਾ माइंड ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ट्रिक काम करना तुसी वो भी कर सकते हो। देखो किवें कि सी आ सी 70 तो 25 1750 ठीक है 60 तो 50 25 का डिफरेंस 3000 ते आ कितना डिफरेंस आया सी 1250। एदा मतलब 25 बंदियां ते 1250 का फर्क पड़िया आपां कढना किन्ने दा 100 का कढना 100 का कढना है। देखो आ 25 का 3 सी इत्थे चेंज कितना दा सी जी 25 का सी क्वेश्चन मार्क हेड कढने बोर्ड ते इत्थे चेंज कितना जी 50 का दुगुना चेंज हो गया 25 तो 50 का चेंज हो एदा मतलब इसका दुगुना चेंज हो गया एदा मतलब एदे अंदर भी कितना चेंज आएगा जी दुगुना आएगा कितना चेंज हो जाएगा जी दुगुना आ जाएगा ते आ कितना बनेगा जी अपने कोल 2500 2500 ते 3000 अपने को बन गए 5500 ते आ इसकी कॉस्ट कितनी आ गई जी 55 रुपीज आ गई। करेक्ट आंसर सी बनेगा। किसी तरीके नाल कर लो जरा मेथड ਤੁਹਾਨੂੰ सही लगता है। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन है कहना सुरेश ए डेली वेज वर्कर कहना सुरेश जड़ा है सॉरी कहना मजदूरी करता है वाज पेड 1700 ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 30 डेज कहना 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ 1700 रुपए मिलते हैं ठीक है जी। कहना ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ही वाज एबसेंट 4 डेज कहना 4 दिन एबसेंट है एंड वाज फाइंड 15 पर डे फॉर एबसेंट कहना ਉਹਨੂੰ 15 रुपए जुर्माना लगता है पर डे तो ਇਹਦਾ मतलब 60 रुपए तो ਉਹਦੇ माइनस हो गए 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। सुरेश वाज पेड दी फुल सैलरी ओनली फॉर 18 दिन कहने ਉਹਨੂੰ 18 दिन फुल सैलरी मिलती है मान लेना फुल सैलरी एक्स है तो 18 दिन फुल सैलरी मिली प्लस ही कैम लेट ऑन अदर डेज क्यों नहीं मिली बाकी दिन फुल सैलरी क्योंकि बाकी दिन वो लेट आया सी। देखो 4 दिन छुट्टी थे 18 दिन चाह पूरी सैलरी मिली तो 22 दिन तो हो गए पिछे लेट कितने दिन है जी 8 दिन लेट है 8 दिन उन्होंने कितनी सैलरी मिली जी हाफ सैलरी मिली है मतलब कि x/2 मिली है तो आ क्या हो गया जी 4x हो गया सीधा सीधा। हुण ए सारे दी वैल्यू अपने को 1700 दी हुई है 22x बराबर आ गया जी 1760 ते x आ गया जी अपने को 80 x की वैल्यू 80 आ गई कहने का मतलब कि एक दिन की सैलरी अपने को क्या आ गई जी 80 आ गई। हुण की पूछे ने वट वाज द टोटल सैलरी पेड पर मंथ टू वर्कर कहंदा उस वर्कर नु कितनी टोटल सैलरी दी जाएगी जरा रोजाना आंदा है तो 80 × 30 जी 2400 आ जाएगा। करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए 2400। हाँ जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाल सॉरी कि टू रिप्रोड्यूस एन ओल्ड फोटोग्राफ चार्जेस रुपीज x टू मेक ए नेगेटिव कहंदा कोई नेगेटिव बनाने लिए किसी फोटोग्राफ का नेगेटिव बनाने लिए x रुपए चार्ज करता है ठीक है जी 3/5 ऑफ x फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट 10 प्रिंट्स कहंदे पहले 10 प्रिंट कढाओगे तो 3/5 पैसे लगणगे ते फिर होर तुसी एक्सेस ऑफ 10 प्रिंट कहंदा जे 10 प्रिंट तो वध प्रिंट कढाओगे तो फिर ਤੁਹਾਡੇ 1/5 लगणगे 10 प्रिंट तो ज्यादा कढाओगे तो कितने लगणगे जी 1/5 लगणगे। कहंदा ए 45 इज टोटल चार्ज कहंदे किसी ने फोटोआं कढाया नहीं तो 45 रुपए पूरे दिते ने
टू मेक ए नेगेटिव उन्हें एक नेगेटिव बनाया तो किन्ने पैसे हो गए जी x प्लस 20 प्रिंट कहते थे 20 प्रिंट बनवाए ने तो 20 प्रिंट दे अंदर पहले 10 प्रिंट ने 10 प्रिंट की कॉस्ट किन्नी होगी जी 3/5 होगी। आप एक मान लेने आप x लेने पर इन्होंने x क्या आप x रख दिया चलो ठीक है किन्नी होगी जी 3/5 होगी। फिर होर किन्ने रह गए जी 20 बनाया तो पीछे 10 हो रह गए बाकी 10 की कॉस्ट किन्नी होगी जी 1/5 होगी। आई होया किस दे बराबर है जी 45 के बराबर है आ बन गया जी x ते 6x ते आ बन गया जी 2x 6 ते 2 8 तक 9x की वैल्यू आ गई जी 45 ਤੇ x कितना आ गया जी 5 रुपए तो उन्होंने पूछा x की वैल्यू पूछी तो कितनी आ गई जी 5 आ गई तो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी 5। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आ वाला क्वेश्चन पिछली बार भी नाइट एग्जाम के अंदर आया सी सेम इसी तरह का क्वेश्चन आया सी तो आप हुणे कल पता नहीं परसों सीरीज के अंदर भी आ क्वेश्चन डिस्कस किया इस तरह का क्वेश्चन ठीक है जी की कह रहे हैं कहना अमन रन से स्पीड ऑफ 50 मीटर पर मीटर कहना अमन दौड़ रहा 50 मीटर प्रति मिनट के अंदर सॉरी मोहित फॉलो हिम आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 5 मिनट कहना मोहित ओनू 5 मिनट बाद फॉलो करता है सॉरी कहना अमित की स्पीड है 50 मीटर प्रति मिनट मैं क्वेश्चन दसिया सी तुहानू किवें करना है उन्होंने लास्ट के अंदर डॉग की स्पीड डिस्टेंस पूछेगा डॉग का डिस्टेंस क्या है जी स्पीड इनटू टाइम केड़ा टाइम जो अमन ते मोहित मिलणगे वो वाला टाइम ठीक है कहना मोहित 5 मिनट बाद चलता है एदा मतलब ओने टाइम से अमन ने कितने डिस्टेंस तय कर लिया 250 डिस्टेंस कितना आ गया जी 250 मीटर आ गया। कहना मोहित की स्पीड कितनी है जी मोहित की स्पीड है 60 मीटर पर मिनट मोहित की स्पीड कितनी है जी 60 मीटर पर मिनट है तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई जी 10 तो टाइम कितना आ जाएगा दी टाइम क्या होता जी डिस्टेंस अपॉन स्पीड 250/10 ते टाइम आ गया जी अपने को 25 मिनट हुण 25 मिनट के अंदर डॉग कितनी डिस्टेंस तय करेगा 70 × 25 कर दो 70 × 25 कर दो डिस्टेंस तो पता करना है 7 5 35 ते आ गया जी 1750 करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 1750 मीटर तय करेगा जी आ वाला क्वेश्चन आप हुणे पिछले सेशन च कीता सी। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी डीआई दा की कहंदा रेलवे एनालाइज द गुड ट्रांसपोर्ट यूजिंग इट सर्विस कहंदा रेलवे ने एनालाइज किया विश्लेषण किया है जेहड़ियां गुड्स ट्रांसपोर्ट कीतियां गईयां ने 5 डिफरेंट रीजन ऑफ ए कंट्री कहंदा कंट्री दे 5 अलग अलग रीजनस दे अंदर द टोटल गुड्स ट्रांसपोर्ट इन लाख्स लख कहंदे लखां दे हिसाब नाल ट्रांसपोर्ट ने केड़े-केड़े सन दियां 2018 2019 ते 2020 दियां कहंदा फॉर विच रीजन वाज द रेट ऑफ इंक्रीज ट्रांसपोर्ट पहला क्वेश्चन इत्थे है इत्थे क्वेश्चन होना सी हाँ जी कहंदा ड्यूरिंग द पीरियड 2018 टू 2020 कहंदा 2018 तो 2020 दे अंदर 2018 तो 20 दे अंदर केड़ा रीजन है जिसका रेट इनक्रीज मतलब कि इंक्रीमेंट दी परसेंटेज पूछी है सेकंड हाईएस्ट है कहंदा सेकंड हाईएस्ट है ठीक है सेकंड हाईएस्ट पूछी है तो देखो जी एक तो आपका तरीका है कि इन्हां नूं माइनस करके परसेंट कढ लांगे जेडी जेडी ऑप्शन दी उन्हां दा माइनस करके परसेंट कढ देने एक वे तो है दूजा जेड़ा जी शॉर्टकट है कि आपां किन्ने गुणा आ चेक कर लिए उस तो भी पता लग जाता है तो पहला माइनस करके परसेंट कर देने नॉर्थ अपन ऑप्शन च है तो नॉर्थ का कितना बन रहा जी डिफरेंस 8 बन रहा 8 × 100 ते पुरानी कितनी है जी 2018 दे 4.5 ठीक है जी 800 नु 4.5 नाल आपां डिवाइड कर लेने 45 नाल करांगे जी आ आएगा जी इत्थे जीरो लगा दिया 45 45 नु पहला 1 ते जाऊगा 45 ते रुको 45 एक ते आ गया 45 35 बच गया 350 7 ते जाऊगा फिर 7 आ बनेगा जी अपने को लगभग 177% ठीक है जी। फिर आप देख लेने जी अपने को ईस्ट का कितना है आ 6.1 है आ मेरे हिसाब 15.8 है चेक करने रीजन 1 मिनट हाँ जी 15.8 ही है ते 6.1 15.8 चो घटाए तो अपने को बच गया जी 9.7 ते 9.7 ते 6.1 डेसिमल हट जाएंगे 97/61 कर दिया तो 97 डिवाइड बाई 61 करिए तो 61 ते 52 ते पीछे की बचेगा जी 6 ते 36 360 ते 6 नाल करिए आ जी 160 के नेड़े तेड़े आऊगा आ लगभग अपने को आऊगा जी 160 के करीब करीब आऊगा 97 सुन जे आप 61 नाल कर दिया था 160 तो थोड़ा जा छोटा ही होगा क्योंकि 361 बनता आ मान लो 159 के पास पास आ रहा है। फिर तीजा देखते हैं 2.3 साउथ दी 2.3 ते कितना जी 11.2 है 11.2 चो 9.3 गए तो आ बचेगा जी अपने को 8.9
8.9 आ गया थले जी 23 है 99/23 99/23 देखिए तो डेसिमल तो हट ही जाएगी जी डेसिमल हट जाएगी अपने कोल ते 23 के हिसाब नाल 3 3 9 ते 6 3 ते 69 20 200 23 9 नहीं 9 3 27 9 दिन 18 ते 1 नहीं 8 ते जाऊगा 8 ते जाके आ जाएगा 380 तो प्लस आएगा 380 प्लस आएगा ठीक है जी। फिर उसके बाद अपने को है आप नॉर्थ का चेक कर लिया ईस्ट का कर लिया साउथ का कर लिया नॉर्थ ईस्ट हो रह गया आ 2.4 तो 7.7 तो 0.3 ते आ गया जी 5.3 ते 24 5300/24 5300/24 के देखिए तो आपने को लगभग लगभग बनेगा जी 24 दूनी 48 होंगे तो 200 के नेड़े तेड़े बनूंगा। इन्होंने पूछा सैकेंड हाईएस्ट सब तो हाईएस्ट केड़ा जी आ वाला सी अपने को सब तो हाईएस्ट सी जेड़ा कि अपने को साउथ दा ठीक है जी। इन्होंने सैकेंड हाईएस्ट पूछा है आ 159 बनया सी अपने को ईस्ट दा ते नॉर्थ दा बनया सी अपने को 177 ते आ बनेगा जी 220 तो नॉर्थ ईस्ट सेकंड हाईएस्ट बनेगा जी अपने को नॉर्थ ईस्ट जेड़ा जी सेकंड हाईएस्ट बनेगा। तो आ जेड़ा जी अपने को कुल कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाने से इस तरह जे इसमें आप सीधा मल्टीपल नाल चेक कर दिया देखो मल्टीपल नाल चेक कर दिया 4.5 दा 12.5 मतलब कि 3 तो घट है 4.5 नु 12.5 नाल आप देखिए तो की चेंज आ रहा जी लगभग लगभग अपने को 2.5 तो 3 दे विचकार 2.5 तो 3 दे विचकार टर्म बनेगी ठीक है। फिर आ रहे जी 6 तो 15 6.1 तो 15.1 तो 158 जा रहे हैं ठीक है जी 6.1 तो 15.8 जा रहे हैं मतलब कि 61 तो 158 जा रहे थे आ अपने को जी 2.5 के नेड़े तेड़े बनूंगा 2.5 के नेड़े तेड़े मतलब 2.6 इन्ना ही बनूंगा ठीक है जी। उसके बाद साउथ का देखिया 2.3 तो 11.2 जा रहा है 11.2 जा रहा है कितों 2.3 तो आज अपने को 4 पॉइंट समथिंग बनेगा 4 दूनी 8 ते इस तरह नाल आज 2.4 तो 7.7 जा रहा है 2.4 तो कितने जा रहे हैं जी 7.7 ते जा रहा है तो आ अपने को 24 3 जा 72 आ बनेगा जी अपने को 3 पॉइंट समथिंग ठीक है जी। इन्होंने सेकंड हाईएस्ट पूछे तो 4.8 तो बाद केड़ी ऑप्शन बनती है जी 3.2 बनती है पर नहीं इन्होंने पूरे दे अंदर सेकंड हाईएस्ट पूछे ओवरऑल के अंदर ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਵੈਸਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ओवरऑल ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ 16.9 ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 18.9 है ਆਪਾਂ ਚਲੋ देखते हैं पहले 16.9 है शायद ਤੇ 16.9 ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਜੀ 5.6 ਤੋਂ 5.6 ਤੋਂ ਆਪਾਂ 16.9 तक जाते हैं तो 3.01 समथिंग बनेगा। सेकंड हाईएस्ट पूछा है तो सेकंड हाईएस्ट अपने को देखो जी की बनेगी नॉर्थ ईस्ट ही बनेगी करेक्ट आंसर आएगा जी नॉर्थ ईस्ट क्योंकि सब तो वत्ता आ सी सेकंड हाईएस्ट नॉर्थ ईस्ट बनेगी ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहता व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट गुड ट्रांसपोर्ट इन नॉर्थ इन 2018 टू द गुड ट्रांसपोर्ट इन नॉर्थ ईस्ट 2020 नॉर्थ के अंदर 2018 के अंदर कितने ट्रांसपोर्ट हुए जी 4.5 ਤੇ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ 2020 ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 2020 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਜੀ 7.7 75 4500/77 4500/77 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 77.5 ਜਾ 75 35 ਤੇ 395 6 ਤੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 42 462 ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 58.44% बन जाएगा जी 5 वाले अपने को एक ऑप्शन सी तो करेक्ट आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर सी 58.44 बन जाएगा कितना बन जाएगा जी 58.44 देख पास पास अपने को बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आंसर आ गया जी सी। हाँ जी नेक्स्ट की कह रहे हैं कहता व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज गुड ट्रांसपोर्ट इन साउथ इन गिवन 3 कहते साउथ के अंदर तीन साल के अंदर टोटल कर लो कितना बन जाए 7 ते 11 11 ते 7 कितना हो गया जी 18 ठीक है जी 11 ते 7 अपने को कितना हो गया जी 18 हो गया पॉइंट अंदर के 8 ते 3 11 ते 13 मतलब कि 1.3 आ बन गया जी अपने को 19.3 ते फिर किस दे नाल देखना आप इनू देखना वेस्ट के अंदर कितना जी 14 ते 5 19 19 ते 10 29 ते 6 35 35.9 ते 5 14 ते 6 20 मतलब कि 37 19.3 देखना है 37 का किन्ने परसेंट बन रहा है 37 का किन्ने परसेंट बन रहा है 1930 बन रहा है ठीक है जी
6 ਤੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 42 ਤੇ ਵੱਧ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 5 ਤੇ 7 5 35 ਤੇ 35 15 ਤੇ 3 18 185 ਆ ਗਿਆ 5 ਤੇ 70 बच गया नहीं 80 ਤੇ 37 दूनी 74 52 पॉइंट समथिंग बनेगा करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर बी। आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं 52 पॉइंट वाली एक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहता स्केटिंग चैंपियन मूव अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस कहता एक स्केटिंग चैंपियन है वो किसी सर्कल ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ 21 ਮੀਟਰ ਹੈ 44 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਜੀ 2 ਪਾਈ r ਸਿੱਧਾ ਜੀ ਪਤਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 66 66 डिस्टेंस तय करता है 44 सेकंड के अंदर तो स्पीड कितनी आ गई जी सॉरी 7 22 ਤੇ 66 ਤੇ 132 ਇੱਥੇ 132 ਆਣਾ ਸੀ हाँ जी 132 आ गया तो 44 सेकंड के अंदर करता था डिस्टेंस की स्पीड कितनी आ गई जी 3 आ गई स्पीड आ गई जी 3 मीटर पर सेकंड 3 ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸੈਕਿੰਡ ਇਟ ਟੇਕ ਟੂ ਮੂਵ ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆਫ ਅ ਹੈਕਸਾਗਨ ਆਫ ਸਾਈਡ 42 ਮੀਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੈਕਸਾਗਨ ਹੈ 42 ਮੀਟਰ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 42 ਗੁਣਾ 6 स्पीड कितनी है जी 3 टाइम पूछे है तो कितना आ गया जी 84 करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी 84 सेकंड लगेगा कितनी सेकंड्स लगेगा जी 84 सेकंड लगेगा मैथ दा लेवल जेड़ा जी ठीक रहा एग्जाम के अंदर। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी डबल पाई चार्ट वाला क्वेश्चन आप पिछे किसी पेपर के अंदर डिस्कस किया होया डबल पाई चार्ट लिए पहले आप इन्हां दा रेशियो कर लेने आया जी 250 ते आया जी 200 तक कितना रेशियो बनेगा जी 5/4 बनेगा कितना बनेगा जी 5/4 बनेगा ठीक है। हुण क्वेश्चन की कह रहा है कहता द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 6 डिफरेंट आइसक्रीम कहता 6 अलग अलग आइसक्रीम का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है बाय वेट इन टेबल के अंदर वेट के हिसाब नाल द टोटल क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम इज विद पी इज 250 kg कहता पी के अंदर जो 250 kg थले वाले 200 kg है वट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ वेनिला इन kg एट पार्लर क्यू दैट पार्लर पी कहता क्यू ते पी के अंदर वेनिला का पूछे हुण वेनिला केड़ी है जी आ वाली है ते आ अपने कोल मेरे हिसाब नाल केड़ी बनूगी वेनिला आ बनूगी जी शायद 12% आ की है जी 12% है 5/4 का 12 आ बनेगा जी 15 आ की है जी 11% ठीक है थले की है जी अपने कोल 11% है वेट आ गया जी 15% ते इत्थे कितना जी 11% कितना डिफरेंस है जी इन्हां दे अंदर 4% डिफरेंस है 200 का 4% क्या इन्होंने क्या वेनिला इन क्वांटिटी पूछिए तो 4% कितना आएगा जी 200 का 4% कितना बनेगा जी अपने को बन जाएगा 8 कितना आ जाएगा जी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा जी 8 kg आएगा कितना आंसर आएगा जी को 8 किलोग्राम आ जाएगा करेक्ट आंसर। हाँ जी नेक्स्ट है कहता विच आर द 2 आइसक्रीम दैट आर लेस इन क्वांटिटी विद पी देन दैट विद क्यू कहता केड़ी 2 आइसक्रीम ने जी पी के अंदर लेस के अंदर क्यू तो क्यू नालों पी के अंदर की ने जी लेस के अंदर ने वो आप 2 क्वांटिटीज देखनिया ने ठीक है जी पहला आप हुणे देखा सी कि आ वाली अपने कोल बनी सी वेनिला 12 सी ते आ 11 सी सब तो पहले देखते हैं जी चॉकलेट अपने कोल केड़ी है जी चॉकलेट वेगी है आ वाली 14% 5/4 ते आ बनेगा अपने कोल 5 ते थल्ले कितनी है जी 18 इन्होंने पूछा लेस अपने कोल केड़ी है 14 का 5/4 देखते हैं 90/4 ते आएगा जी 2 ते 7 35/2 ते आ गया जी 17 पॉइंट कुछ ते आ जी 18 एक तो आई लेस आ गई जी अपने कोल चॉकलेट आ गई ते आपा देखो दोवां दे ऑप्शन बटर स्कॉच या फिर टूटी फुटी या तो इन्हें दोनों चेक करते हैं कि बटर स्कॉच है या टूटी फुटी है बटर स्कॉच देखो जी कितनी बन रही है बटर स्कॉच अपने कोल केड़ी है जी आ वाली है 15% 15 का 5/4 ते थल्ले कितनी है जी बटर स्कॉच अपने कोल 21 है आ बनेगा जी 75/4 ते आ बन गया 4 आ लेस बनेगी देखो 4 1 4 ते 35 ते 700 के 800 के 32 18 बन रही है तो अपने को आंसर आएगा जी बटर स्कॉच एंड जी है जी चॉकलेट आ जाएगी करेक्ट आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है जी ऑप्शन नंबर ए बटर स्कॉच एंड चॉकलेट जो है इसका आंसर बनेगा इन्होंने क्या जी लेस इन क्वांटिटी विद पी देन दैट क्यू कहता क्यू तो लेस क्वांटिटी के अंदर पता करना सी तो क्या आएगा जी बटर स्कॉच ते चॉकलेट आएगी। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन कहना व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस in quantity in kg of raspberry and strawberry together at a parallel p and q कहंदा एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है किस दे अंदर raspberry ते strawberry दे अंदर इकट्ठा together at the parallel p and q कहंदे p अते q दे अंदर कितना डिफरेंस है किस दा पूछा है इन्होंने raspberry ते strawberry दा। हां जी तो raspberry अपने कोल केड़ी है आ वाली है जी 21%
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ 15 आ गया जी 6 ते 36 गुणा 5/4 आ गया जी 45 इस तरह इत्थे देख लेने जी आ जी 13 ते 21 3 ते 1 4 ते 34 कितना डिफरेंस आ गया जी इन्हां दे अंदर 11 का डिफरेंस है 11% ऑफ 200 देखांगे तो कितना आ जाएगा जी 22 आ जाएगा जी करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए सौखा सी जी पाई चार्ट वाला क्वेश्चन कोई ज्यादा कैलकुलेशन वाला नहीं सी हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कहना 3 पार्टर NMO डिस्ट्रीब्यूट दी अर्निंग दे गोट आफ्टर डूइंग ए पर्टिकुलर असाइनमेंट कहंदा उन्होंने अर्निंग मिली है तिन्नां नूं NM ते O नूं मिली है जी कहंदा उन्होंने एक असाइनमेंट कीती सी टोटल अर्निंग 1240 है की करे N गेट 3/5 ऑफ M N नूं कितना मिलदा है जी 3/5 ऑफ M मिलदा है तो N रेशो M कितना आ गया N रेशो M कितना आ गया जी 3/5 आ गया N रेशो M अपने को आ गया जी 3/5 ते M गेट्स 2/3 ऑफ O M ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 2/3 O ਦਾ ਤਾਂ M ਰੇਸ਼ੋ O ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2/3 ਆ ਗਿਆ M ਰੇਸ਼ੋ O ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2/3 ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਸੇਮ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 6/10 ਇਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 15 ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ 21 ਤੇ 10 31 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੀ 1240 ਤਾਂ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 40 ਆ ਗਈ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਦਾ N ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪੁੱਛਿਆ N ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 6 ਤੇ 40 * 6 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 240 ਕरेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन है कहना X एंड Y प्ले शूटिंग द बुल आइज कहंदा ਉਹ गेम खेल रहे X ਤੇ Y X plays 7 turn to Y's every 5 X ਕਿੰਨੇ ਖੇਡਦਾ ਹੈ 7 ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਜੇ Y ਕਿੰਨੇ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਜੀ 5 ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਹਿਟਸ बुल आइज ओनली वंस इन थर्ड ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ Y hit bull eyes every alternative कहंदा अल्टरनेटिव दे अंदर करदा है मतलब कि हाफ Y कितने टाइम हिट करदा है जी अद्धे बारी हिट करदा है हाफ अल्टरनेटिव कितना हो गया जी 1/2 आ गया कहंदा व्हेन Y हैव मिस्ड 75 एदा मतलब कहंदा Y ने मिस करतियां 75 कितनी मिस करदियां जी 75 मिस करदियां एदा मतलब 1/2 दी वैल्यू कितनी है जी 75 है तो 1 दी वैल्यू कितनी आ गई जी 150 एदा मतलब टोटल ओनु हिट ते मिसिंग कितने मिले सी जी 150 मिले सी Y नु कितने मिले जी 150 चांस मिले है 5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 150 ਹੈ 5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ 150 ਤੇ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 30 ਆ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਚਾਂਸ ਨੇ 7 * 30 ਕਰੋ 210 ਚਾਂਸ ਨੇ 210 ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ ਜੀ 1/3 ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 70 ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 70 ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦਾ I sold 2 ਸਕੂਟਰ at same price ਕਹਿੰਦਾ I ਨੇ 2 ਸਕੂਟਰ ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ one of them at 10% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨੂੰ 10% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਵੇਚਿਆ I incurred total loss of 12% in overall transaction ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ overall transaction ਦੇ ਅੰਦਰ 12% loss ਹੋਇਆ I ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ loss ਹੋਇਆ ਜੀ 12% loss overall ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ overall loss ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਦਾ loss ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ CP ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ I incurred total loss of 12% in overall transaction कहता what was approximate profit on other scooter कहते दूजे स्कूटर ते approximate profit ओनू किन्ना होएगा दूजे स्कूटर दा प्रॉफिट पूछया जी कि ओनू दूजे स्कूटर ते approximately किन्ना प्रॉफिट होवेगा देखो जी दोनों दा SP सेम है सेलिंग प्राइस सेम है इनू दो तरीके नाल मैं तुहाडे नाल डिस्कस करांगे ठीक है SP सेम है दोवें दा इन्हें कहा कि 10% प्रॉफिट ते बेचा एदा मतलब SP किन्ना हो गया जी 10% प्रॉफिट ते बेचा तो 110 हो गया 110 हो गया प्रॉफिट ठीक है जी जे CP 100 है जे इसका CP 100 है इत्थे लिख लेना जे CP 100 है ठीक है तो SP कितना हो गया जी 110 इत्थे SP है आ CP है 110 हो गया क्योंकि इससे 10% फायदा है दूजा की कह रहा है दूजा कह रहा है कहना उस नूं दूजे ते देखो ओवरऑल ਉਹਨੂੰ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਸ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਆ CP ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆ CP ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ SP ਤਾਂ 110 ਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ SP ਤਾਂ 110 ਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ CP ਹੈ CP ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ 100 + x 100 + x ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ CP ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 100 + x ਹੈਗਾ ਤੇ SP ਆਪਣੇ ਕੋਲ 110 ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 10% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ठीक है SP तो 110 ही रहूगा तो टोटल SP अपने को 220 बन गया इत्थे अपने को अमाउंट अपन पता नहीं
ਆ 220 ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਵੇਚਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 12% ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 88% ਦੀ ਵੈਲਿਊ 12% ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 88% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 220 ਹੈ। 88% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 220 ਹੈ। 88% ਦੀ ਵੈਲਿਊ 220 ਹੈ ਤੇ 1% ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ 220 ਬਟਾ 88। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 22 ਤੇ 10 ਤੇ 4, ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਬਟਾ 2, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 2.5 ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2.5 ਆ ਤਾਂ 100 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 250 ਆ ਗਈ। 100 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 250 ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 100 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 250 ਆ ਗਈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2.5 ਹੈ ਤਾਂ 100 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 250। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ 100 ਇੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 100 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜੇ 250 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 150 ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 150 ਆ ਗਿਆ, x ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 150 ਹੈ। ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਜੀ 150 ਤੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ 5 ਦੂਣੀ 10 ਤੇ 5 ਤੇ 15, 80 ਬਟਾ 3 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 2 ਤੇ 6 7 20, 27% ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ 27% ਉਹਨੂੰ ਲੋਸ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਸੀਪੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਆ ਮੈਂ ਐਸਪੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀਪੀ 100 ਹੈ ਤਾਂ 10% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਤਾਂ 110 ਦਾ ਵੇਚਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਪੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਲੋਸ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਪਰ ਐਸਪੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸਪੀ 110 ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ 220 ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ 12% ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ 220 ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 88% ਦੀ ਹੈ। 88 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 220 ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸੀ 2.5 ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 100 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 250 ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 250 ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 150 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 27% ਲੋਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 27% ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਲੋਸ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਊਟ ਆਫ 8 ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨ ਅ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਲਫਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਫਾ ਦੇ ਮਤਲਬ 8 ਨੇ। 10 ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀਟਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਟਾ ਦੇ 10 ਨੇ। 12 ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਗਾਮਾ, ਤੇ ਗਾਮਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ 12 ਨੇ। ਆ ਬੀਟਾ ਦੇ ਨੇ, ਆ ਅਲਫਾ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਟੀਚਰ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਟੀਮ ਟੂ 3, ਕਹਿੰਦਾ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਟਰ ਸਕੂਲ ਕੁਇਜ਼ ਲਈ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਬਣੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ। 2 ਮੈਂਬਰ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਲਫਾ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੀਟਾ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਾਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਬਣ ਗਈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ 2 ਮੈਂਬਰ ਅਲਫਾ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬੀਟਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਮੈਂਬਰ ਅਲਫਾ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਗਾਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਮੈਂਬਰ ਬੀਟਾ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਬੀਟਾ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਗਾਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ 2 ਮੈਂਬਰ ਗਾਮਾ ਦੇ ਕਰ ਲੇ, ਇੱਕ ਅਲਫਾ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਟਾ ਦਾ। ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜੀ 8 ਗੁਣਾ 10 80 ਤੇ 12 8 960 ਬਣ ਜੂਗਾ। 12 8 96 ਤੇ 960 ਬਣੂਗਾ। 8 into 2, 8 ਤੇ 2 ਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ 8 ਗੁਣਾ 7 ਤੇ 7 ਚੌਕੇ 28, ਆ ਬਣੇਗਾ ਜੀ 280। ਫੈਕਟਰ ਕੋਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 8 ਦਾ 2 ਟਾਈਮ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਥੱਲੇ 2 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 4 7 ਚੌਕੇ 28 ਤੇ 28 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ 280 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਆ ਬਣੇਗਾ 28 ਗੁਣਾ 12, 28 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 280 ਤੇ 56 336 ਬਣੇਗਾ। आ 10 फैक्टोरियल 10 C2 है तो 10 C2 बनेगा जी 45 45 इंटू 8 करांगे तो अपने को बनेगा जी 45 इनू 8 नाल 8 5 40 ते 32 ते 36 360। फिर है जी 10 C2 ते 12 C1 ते 10 C2 ਦਾ 45 ਤੇ 45 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 450 ਤੇ 90 540 ਬਣੇਗਾ। ठीक है जी, उसके बाद 12 C2 12 गुणा 11 बटा 2 करांगे तो 11 गुनी 66 66 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 48 ਤੇ 48 ਤੇ 4 52 ਆ ਬਣੇਗਾ ਜੀ 528 ਆ 528 ਬਣੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ 66 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ 660 ਬਣੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ जोड़ लेना, पीछे देखो 8 ਤੇ 6 14 पीछे की बनेगा जी 4 बनेगा ਤੇ ਪਿੱਛੇ 4 ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ए ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ए। ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ए। ठीक है जी, हाँ जी, तो आ समझते अपने क्वांट के पोर्शन क्वेश्चन एक अद्धा क्वेश्चन होर भी है वो मैं तुम्हें लिख के करवा दी हाँ। ठीक है जी, रह गया से जरा आप लिख के कर लेने क्वेश्चन पेपर के अंदर देख लेने केड़ा क्वेश्चन रह गया।
हाँ जी, एक क्वेश्चन से अपने को क्वेश्चन आया सी कहते दी नंबर 311 311 7 टाइम्स दिता होया 311 311 ऑप्शन सी जी थले पहली सी डिविजिबल बाय 3 कहंदा डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 11 दूजी सी जी डिविजिबल बाय 11 नॉट बाय 3 तीजी सी जी नॉट डिविजिबल बाय 3 ना तो 3 नाल ते ना ही 11 नाल तीजी सी जी दोनों नाल ही है 3 नाल भी डिविजिबल है ते 11 नाल ही है तो ये अपने को इस तरह के 7 पेयर सन जी तो देखो जी एक पेयर का सम कितना बन रहा है 5 बन रहा है ते 7 पेयर ने तो कितना सम बनेगा 35 बनेगा तो 3 नाल तो डिविजिबल है ही नहीं 3 नाल तो 8 डिविजिबल अपने को बनना ही नहीं 11 लिए आप चेक कर लांगे 11 लिए एक डिजिट छड़ के आप देखांगे तो 3 ते 1 4 5 कितने पेयर सी 7 सी उमें भी 7 पेयर है तो 11 नाल भी डिविजिबल नहीं होएगा 7 पेयर बन रहे हैं ना तो 11 नाल भी डिविजिबल नहीं होगा पर तुहानू प्रूफ करके भी शो कर देने आपां कि 7 नाल 11 नाल भी नहीं बन रहा 3 ते 1 4 ते 5 ते 3 8 ते 1 9 9 ते 1 10 ते 3 13 ते 1 14 15 3 18 ते 1 19 आ बन रहा जी 19 ठीक है आ बनया 1 ते 3 4 ते 5 ते 6 7 8 8 ते आ बनेगा 9 गड़बड़ हो गई 3 ते 1 4 ते 1 5 5 ते 1 6 6 ते 3 9 ते 1 10 ते 1 11 ते 3 14 ते 15 ते 1 16 देख लो जी 3 बच रहे दोवां नाल डिविजिबल नहीं होएगा इसका ऑप्शन बन सी नाइदर बाय 3 ते नॉर बाय 11 ना ही जेड़ा 3 नाल है ते ना ही 11 नाल है दोनों नाल ही जेड़ा जे अपने को डिविजिबल नहीं होएगा ना 3 नाल डिविजिबल होएगा ते ना ही 11 नाल डिविजिबल होएगा तो करेक्ट ऑप्शन है इसदी ऑप्शन नंबर डी बननी सी जी डी ऑप्शन दी हुई है नाइदर बाय 3 नॉर बाय 11 हाँ जी एक क्वेश्चन हो रहा है टाइप करने वाला वो भी देख लेने केड़ा सी जी वो अपने को सैट थ्योरी का जो क्वेश्चन सी कि इन्ने परसेंट स्टूडेंट आ जियोग्राफी करते हैं इन्ने परसेंट स्टूडेंट जो अपने को मैथ पढ़ते हैं वो वाला क्वेश्चन भी आप मैथ के अंदर क्वांट का क्वेश्चन एक तरीके नाल सैट थ्योरी जी है उन्होंने रीजनिंग अंदर भी ले सकते हैं वो भी आप डिस्कस कर लेने जी हाँ जी क्वेश्चन देख लेने एक मिनट क्वेश्चन लिखा देनी मैं तुहानू हाँ जी क्वेश्चन की कि इन ए स्कूल रिजल्ट ऑफ 12th क्लास मिड सेमेस्टर एग्जाम ऑल वर डिसअपॉइंटेड विद रिजल्ट कहते सारे डिसअपॉइंटेड रिजल्ट दी समरी ऑफ द रिजल्ट वाज की सी रिजल्ट दी समरी की है जी पहला लिख लेना कहता 52% जेडे जी पास होए ने जियोग्राफी दे अंदर की कह रहे 52% जेडे जी जियो दे अंदर पास होए ने ठीक है जी उसके बाद कह रहे जी 49% पास इन हिस्ट्री 49% जेडे जी हिस्ट्री दे अंदर पास होए ने ओके जी उसके बाद कह रहे जी 38 पास इन बायोलॉजी 38% जेडे जी बायो दे अंदर पास होए ने ओनली 9% स्टूडेंट कहना 9% स्टूडेंट पास इन ऑल 3 9% जेडे जी इन्हां तिन्नां दे अंदर ही पास होए ने जियो हिस्ट्री ते बायो दे अंदर ठीक है जी एंड 17% पास इन जियोग्राफी एंड हिस्ट्री कहता 17% जेड़ा जियोग्राफी अते हिस्ट्री दे अंदर पास होए ने दोवां दे अंदर ओके जी उसके बाद कहता 16% इन जियोग्राफी 16% जेड़ा जी जियोग्राफी एंड बायो दे अंदर होए ने ते 15% जेड़ा की कह रहा है हिस्ट्री एंड बायो दे अंदर होए ने इस तरह के अपने को क्वेश्चन सी ते अपने को 3 बनने सी सब्जेक्ट केड़े जी आ मान लिया जियो हिस्ट्री ते बायो ठीक है जी जियो हिस्ट्री ते बायो हो गया आ लिख लेना जियो आ हो गया हिस्ट्री ते आ हो गया जी बायो ठीक है हुण देखो एक है जियो दे अंदर कितने ने 52% जियो दे अंदर ओवरऑल 52% कह रहा आ अगेन जी कहते 52 हिस्ट्री दे अंदर कह रहा जी 49% ते बायो दे अंदर हो जी 38% ठीक है जी कहता तिन्ना दे कॉमन होए ने 9 आ किन्ना जी आ अपने को 9 दिता है जियो ते हिस्ट्री आ दोने बन रहे आ दिता है जी 17 ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक है जी ते हिस्ट्री जियो ते बायो दे अंदर दिता है जी 16 ते हिस्ट्री ते बायो दे अंदर दिता है जी 15% हुन क्वेश्चन दे पूछया की सी अपने कोल पूछया सी जी नंबर ऑफ स्टूडेंट की कहंदा नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टुक द एग्जाम इज 300 कहंदा जिन्ने बच्चों ने पेपर दिता है जिन्ने बच्चों ने पेपर दिता है जी उन्हां दी गिनती टोटल ਤੁਹਾਨੂੰ 300 दिते है टोटल नंबर कितने दिते है जी 300 दिते हैं टोटल बच्चे कितने जी 300 दिते हुए हैं
ओके 300 दिते है तो अपने को क्वेश्चन की सी वो देख लेना। पहला तो आप डायग्राम कर लेना सेट। आ सी अपने को टोटल 52 ने 52 के अंदर देखो अपने को किन्ने बचनगे पिछे आ 9 ने कहता इन्होंने दोनों के कॉमन 17 के 17 चो 9 के किन्ने आ गए जी 8। ठीक है इन्होंने दोनों के कॉमन 16 ने 16 चो 9 के किन्ने आ गए जी 7 ते इन्होंने दोनों के कॉमन 15 ने 15 चो 9 के जी किन्ने आ गए जी 6। ठीक है आ कहता टोटल किन्ने ने 52 ने 52 चो किन्ने घटा देंगे 8 से 15 15 ते 9 24 घटा दो किन्ने आ गए जी 28 आ गए। इसी तरह इधर 49 के अंदर किन्ने घटा देंगे जी आप 8 ते 14 ते 9 25 ते 25 घटाई किन्ने आ गए जी अपने को आ गए जी 24। 8 ते 14 23 बन गए सॉरी 23 बन रहे हैं 8 से 14 ते 9 23 23 घटावांगे तो किन्ने बनणगे जी 26 बनणगे 9 ते 6 15 ते 7 22 घटा दो 38 के अंदरों तो अपने को किन्ने बनणगे जी 16 बनणगे। तो अपने को पहले अपने को डायग्राम बन चुके हैं कि इन्हां दे अंदर इन्ने अपने को बच्चे ने अपना पूरा डायग्राम बन चुका है। हुण आपां क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन की कह रहा है कहना फाइंड दी रेशियो ऑफ स्टूडेंट पासिंग इन जियोग्राफी ओनली टू द स्टूडेंट पासिंग इन बायोलॉजी ओनली। कहंदा कल्ले जियो दे अंदर कल्ले जियो दे अंदर ते कल्ले बायो दे अंदर आ जियो है आ हिस्ट्री है ते आ बायो है। कहंदा जियोग्राफी ओनली टू बायो ओनली दे अंदर कितना रेशियो है कितना रेशियो बन रहा जी तो कितना बनेगा जी आ कितना जियो दा 28 है ते आ 16 है ते कितना बनेगा जी अपने को 7 4 जा ते 4 4 जा 7:4 बनेगा जी। करेक्ट ऑप्शन बनेगी जी 7:4। ठीक है जी 7:4 बनेगा। इसका आंसर की बनेगा जी 7:4 बनेगा। हाँ जी दूजा की पूछा इन्होंने दूजा इन्होंने पूछा है कहना ए स्टूडेंट इज डिक्लेयर्ड पास कहना स्टूडेंट नो एक पास कदों डिक्लेयर कर देगा ओनली इफ ही क्लियर एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट। कहना जे वो घट्टो घट 2 सब्जेक्ट पास करेगा तो उन्होंने आप पास डिक्लेयर कर देंगे। वट वाज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वर डिक्लेयर्ड पास कहते जे घट्टो घट 2 पास किए तो उन्होंने पास डिक्लेयर करांगे। ठीक है जी कहते टोटल पास स्टूडेंट किन्ने ने तो वध तो वध 3 भी पास कर सकता है वध तो वध 3 भी पास कर सकता है। तो इन्होंने टोटल नंबर पूछा है टोटल नंबर पूछा है टोटल किन्ने बनणगे जी देखो टोटल नंबर पूछा है तो अपने को 8 ते 7 15 ते 6 21 ते 9 30 आ 2 वाले ने आ 3 वाले टोटल बन गया अपने हिसाब नाल 30 ते वैल्यू कितनी दी है अपन 300 दी है 300 का 30% 300 का 30% कितना आएगा जी 90 आएगा। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन नंबर 90 ऑप्शन जी 90 दी है वो आ जाएगी जी करेक्ट। ठीक है जी नैक्सट क्वेश्चन इन्होंने की पूछा अपने को देखते हैं नैक्सट क्वेश्चन की कह रहा है कहता दी रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन एग्जैक्टली 1 एंड एग्जैक्टली 2 पर सब्जेक्ट। कहना उन्हों का रेशियो पता करना जरा या तो एग्जैक्टली 1 वाले देखने पहला एग्जैक्टली 1 वाले किन्ने बन गए जी 40 ते 50 56 ते 6 62 ते 8 70 ते किस दे नाल एग्जैक्टली 2 वाले किन्ने ने 8 ते 7 15 ते 6 21 तो आ गया जी 10 ते आ गया जी 3 10:3 आ जाएगा जी क्या आ जाएगा जी 10:3 कितना आ जाएगा जी 10:3 आ जाएगा। ठीक है जी तो आ सी जी अपने को क्वांट्स पोर्शन के क्वेश्चन जो अपने एग्जाम के अंदर आए हुए उम्मीद करते हैं तुहानू क्वेश्चन समझ आए होंगे। पेपर का लेवल मॉडरेट सी ठीक है क्वेश्चन कई लेंथी सी कई जड़े काफी ईजी सी। तो अज दे लिए इन्ना ही थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज वीडियो लाइक शेयर जरूर करो तो चैनल सब्सक्राइब भी करो।